سود 13.75% ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 1.5% بڑھا دی ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے آئی نمائندے صفدر عباس سے۔ جی صفدر عباس، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جاری تھا، جس کے اندر ملکی اور عالمی صورتحال کا اجلاس کی قیمتوں میں خاص طور پر جائزہ لیا گیا اور جو ملک میں انفلیشن ریٹ ہے اس کے مد نظر فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی اس کے اندر تقریباً 1.5% کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد بنیادی شرح سود 13.75% ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو قبل اس وقت اجلاس کیا گیا تھا اسٹیٹ بینک میں، اس کے اندر بھی پالیسی ریٹ بڑھایا گیا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پہ پالیسی ریٹ میں 1.5% اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد بنیادی شرح سود 13.75% پر پہنچ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے جو ملکی صورتحال، جو افراطی زر کی صورتحال ہے، ساتھ ہی کرنٹ اکاؤنٹ کی صورتحال کے پیش نظر جو یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس سے مہنگائی کو جو ہے وہ کچھ کنٹرول کیا جا سکے، اور جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ساتھ ہی جو کٹ آف ایل تھی ٹیجیبلز کی، اس کے اندر بھی اضافہ سامنے آیا تھا۔ تو آج ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کی جو کمیٹی تھی اس کے اجلاس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا کہ بنیادی شرح سود کے اندر 1.5% اضافہ کیا گیا، پالیسی ریٹ 13.75% ہو گیا ہے۔ جی صفدر بتائے گا کہ جو شرح سود کے حوالے سے جو اضافہ کیا گیا ہے اس پہ تاجر برادری کا کیا رد عمل ہے؟ آج بالکل تاجر برادری کی جانب سے یہ پہلے ہی سے بات سامنے آ رہی تھی کہ جو شرح سود اس کا اضافہ نہ کیا جائے، کیونکہ بنیادی شرح سود میں اضافے سے نہ صرف جو قرضے لیتے ہیں انڈسٹریل ایکسپینشن کے لیے، اپنے پلانٹ کے لیے، اپنے پروڈکشن بڑھانے کے لیے، تو ان کو کافی مہنگے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے مطالبہ سامنے آ رہا تھا کہ پہلی شرح سود جو ہے وہ 12.25% کافی بلند دکھائی دے رہی تھی، تو ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ اس کے اندر اضافہ نہ کیا جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بار اضافہ سامنے، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجروں کی جانب سے، صنعت کاروں کی جانب سے کافی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 1.5% بڑھا دی ہے۔ بنیادی شرح سود 13.75% ہو گئی ہے، اور اس بڑھانے کے بعد، اضافے کے بعد تاجر برادری اور صنعت کاروں کی جانب سے جو ہے رد عمل سامنے آیا ہے کہ اس سے ان کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ صفدر یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے IMF سے ڈیل بھی ہو رہی ہے، کیا اس ڈیل کو مثبت انداز میں کرنے کے بعد کیا ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ شرح سود کو کم کر سکیں؟ جی بالکل، اس سے قبل بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہا جاتا رہا ہے کہ جو پالیسی کمیٹی ہے اسٹیٹ بینک کی، وہ وقتاً فوقتاً صورتحال کا جائزہ لیتی رہی ہے۔ ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں کئی بار کمی کی تھی، بھی اس کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ جو صورتحال ہے، ملکی صورتحال ہے، جناح سے خاص طور پر قیمتیں، افراطی زر کی صورتحال ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے، تجارتی خسارہ ہے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جائزہ لیا جاتا ہے، اور آج بھی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے انہیں تمام باتوں کے پیش نظر فیصلہ کیا ہے، اور ایسا کہا جاتا رہا ہے کہ جو ایڈوانس پریڈکشن کی جاتی ہیں ان کے پیش نظر جو وہ پالیسی ریٹ میں رد و بدل کا امکان جی سے بالکل موجود ہوتا ہے۔ بالکل، اس پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ایڈیٹر بزنس ڈیسک عمران سلطان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران سلطان، اسٹیٹ بینک نے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے اور بنیادی شرح سود 13.75% پر پہنچ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ جی یہ بالکل ایویڈنٹ تھا، اور اس کے واضح اشارے تھے کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ شرح سود میں اضافہ کرے گا۔ بات یہی تھی کہ 1% سے زائد اور 2.5% سے کم، اس کے اوپر مارکیٹ میں جو ہے وہ بڑی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کی اصل وجہ جو اس وقت دیکھی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں مانیٹری مس مینجمنٹ ہے، جو جس طریقے سے روپے کی قدر گر رہی ہے، تو اسٹیٹ بینک کو اس وقت ایک ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کرٹیل کرنا ہے، جس کی وجہ سے پالیسی ریٹ کو بڑھا کر اس طلب کو کم کیا جانا جو ہے فی الحال ضروری ہے۔ اب یہ چیز 1% کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ جو انتہائی اہم فیصلے ہیں، اسپیشلی جو پیٹرولیم پرائسز اس وقت سبسڈی دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ جو پریشر اس وقت بن رہا ہے ملکی معیشت پر، یہ ایک بہت اس وقت ضرورت کسی بات کی ہے کہ جناب آپ کسی طریقے سے اس کو کرٹیل کریں۔ دوسرا سگنل یہ تھا کہ ٹی بل آپشن لاسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس وقت گیا ہے تقریباً 14.8 سے 15% کے قریب پہ گیا۔ مارکیٹ پالیسی ریٹ آپ کا اس وقت 12.5% پہ تھا، 12.25% پہ، اور ٹی بل آپشن جو ہے وہ آپ کا مہنگا بک رہا ہے۔ تو حکومت کے جو ذرائع ہیں فائنینسنگ کے وہ محدود ہو گئے ہیں، وہ صرف ایک بینکنگ سسٹم اس کے پاس بچا ہے۔ اسٹیٹ بینک سے وہ کرنسی لے نہیں سکتا، نوٹ چھاپ کر اسٹیٹ بینک دے نہیں سکتا،
फॉरेन फंडिंग इस वक्त रुकी हुई है। IMF प्रोग्राम दायरे के इसमें कंटिन्यू करना है, उसके लिए बातचीत हो रही है। तो जो हमारे बैंकिंग एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा हाई हुआ है और वही चीज रिफ्लेक्ट हुई थी टी-बिल्स ऑप्शन के अंदर, जब वहां पे मार्केट रेट जो है वो बहुत ज्यादा थे। तो इसी को मैच करने के लिए इस वक्त जो है ये पॉलिसी रेट को बढ़ाया गया। तो लॉन्गर टर्म में इस वक्त जो रिलीफ अगर मिलेगा तो इनको लामहला पेट्रोलियम प्राइसेस जो है सब्सिडी को खत्म करना होगा, इसको कम करना होगा और उसके बाद दूसरे टूल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, इमरान सुल्तान साथ मौजूद रहेगा। साबिक वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह। डॉक्टर सलमान शाह, शरह सूद बढ़ा दी गई और बुनियादी शरह सूद 13.75% पर आ गई है। क्या जो हमारी अभी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं IMF से, कोई ये मुतालबा तो उस जानिब से नहीं आया कि शरह सूद भी बढ़ाई जाए? देखिए, ये तो हमारा रीजनल IMF प्रोग्राम के मुताबिक एक किस्म का अंडरस्टैंडिंग है कि आपका जो डिस्काउंट रेट है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि जो इन्फ्लेशन चल रही है मुल्क में उससे ये थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो उस लिहाज से तो ये IMF की थिंकिंग के साथ मिलता है और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा है कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इवन दो उसका वजह जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस है, इंटरनेशनल फूड प्राइसेस, इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस। तो उसके जो एक फॉल आउट है वो हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स पे भी है कि इंटरेस्ट रेट्स को पॉजिटिव होना चाहिए और इसकी वजह से कुछ डिमांड को कर्ब किया जाए। अच्छा, इंटरनेशनली अगर हम चीजों को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं और हमारे मुज़ाकरात मजबूत हो जाते हैं IMF से, तो क्या हम इस पोजीशन में होंगे आइंदा कि हम शरह सूद को भी कम कर सकें ताकि मकामी ताजिर को फायदा हो? देखिए, शरह सूद तो कम होगी जब मुल्क में इन्फ्लेशन कम होगी, क्योंकि ये IMF प्रोग्राम के तहत शरह सूद जो है ये इन्फ्लेशन के साथ कनेक्टेड है। और अगर ये प्रोग्राम हमारा कामयाब होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है IMF प्रोग्राम में, एक्सचेंज रेट की फ्लेक्सिबिलिटी और इंटरेस्ट रेट्स की इन्फ्लेशन बेस्ड जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक हम चलते रहें और जो खसारे फिस्कल डेफिसिट के खसारे एनर्जी की वजह से हैं, पेट्रोल की वजह से हैं, बिजली की वजह से हैं, उन पे हम काबू पाते हैं। तो खासी स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए और उससे एक्सचेंज रेट भी कम होना चाहिए और अगर इन्फ्लेशन नीचे आ जाती है तो फिर इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आए। इस वक्त मेन फोकस स्टेबिलिटी का है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये इनस्टेबल सिचुएशन को कंटिन्यू किया जाए और पाकिस्तान के रिजर्व्स खुदा न खास्ता एग्जॉस्ट हो जाए इस प्रोसेस में। सो आई थिंक ये एक्सपेक्टेड डिसीजन थी, इन लाइन विद जो IMF प्रोग्राम भी है और आगे चल के हो सकता है और भी बढ़ाने पड़े। ये जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम अपने आ चुके हैं पीक पे। ये फ्यूचर में इन्फ्लेशन को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा और उसके मुताबिक इंटरेस्ट रेट्स को करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद है। समीउल्लाह तारिक तजियाकार समीउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। समिया, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सूरत हाल अभी हमारे सामने आ रही है इसके मुताबिक यही है कि आगे भी ये बढ़ सकती है, तो क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है या फिर बेहतरी की तरफ जाने के लिए क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे? स्टेट बैंक ने ये स्टेप लिया, ये तो मेरे ख्याल लेना ही चाहिए था, क्योंकि मार्केट यील्ड ज्यादा हो गई थी ऑलरेडी और जो है अब हम जो है वो पीछे थे उससे। दूसरी तरफ ये कि महंगाई की शरह इस वक्त 13.5% तो लगभग है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट जो है वो फ्यूल और बिजली की प्राइस वगैरह जब ठीक करेगी, यानी अपने लेवल पे आएगी जहाँ पे कॉस्ट है हमारी, तो हमारी इफरात ज़र की शरह पीक पे 17-18% पे लगभग जाएगी और फिर आहिस्ता दोबारा नीचे है। तो वो चूंकि एक पेंडिंग एक इंक्रीज है, तो वहां पे जाके फिर देखना होगा कि फिर हम कहाँ जाके खड़े होते हैं, क्योंकि उसमें जाहिर है ये रोल भी है कि इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइसेस कम मूव होती हैं। अगर ऑयल की कीमत नीचे आ जाए तो जाहिर है हमारे ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन अगर ऑयल और पेट्रोलियम और LNG वगैरह कोल की कीमत अगर ऊपर ही रहती तो जाहिर है प्रेशर रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी, कुछ फिस्कल साइड पे भी इन्फ्लेशन की तरफ से भी। तो ये सारी चीजें स्टेट बैंक को देखते हुए जो है वो फैसला करना होगा आगे की। जैसे सलमान साहब कह रहे हैं कि हो सकता है आगे भी रेट ऊपर की तरफ भी रहें,
तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है ज़ाहिर। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, IMF का अमल दखल है इसमें, जिस तरीके से सुबह हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बात की थी? नहीं, मतलब IMF का ये कहना होता है कि आप जो भी मतलब जो कमोडिटी प्राइस है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, इंटरनेशनल लेवल में, लेकिन ये कि आप अपनी पॉलिसी से उनका इम्पैक्ट अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स पर कम कर सकते हैं, तो चाहे वो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी है, एक्सचेंज रेट। तो जाहिर है वो भी यही चाहेंगे कि इस वक्त चूंकि आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो अगर आप किसी पॉलिसी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से, तो आप जरूर करें। अच्छा, आपका जी हाँ, इसीलिए जो है उनका टेंड इसी तरफ होगा डेफिनेटली कि आप जो है मॉनेटरी पॉलिसी टाइट ही रखिए जब तक आपकी इफरात ज़र जो है वो कंट्रोल नहीं हो जाती। तो समीला साहब, ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर हमारे IMF से मुज़ाकरात मज़बूत समत में आगे बढ़ते हैं और मुल्क में हम उनकी कही हुई चीज़ों को फॉलो करते हुए आवाम को भी रिलीफ दे पाते हैं, तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। आवाम को रिलीफ देना तो जाहिर है वो टारगेटेड स्कीम के तहत ही कर सकेंगे। ओवरऑल तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर आप देखें 2019-20 में जब ये एक दफा मैंने साइकिल आया था 13.25% पॉलिसी रेट हुआ था, सही, उसके बाद जो है वो मार्केट यील्ड नीचे की तरफ वापस आना शुरू हो गई थी। फिर तो खैर कोविड आ गया, एक साथ ही 6-7% गिर गया। जी जी। लेकिन आप देखिए स्टेबलाइजेशन हमारी 5-6 महीने में काफी हद तक हो जाती है अगर फिस्कल और मॉनेटरी दोनों साइड से आप टाइट करके चले तो। लेकिन उसके लिए कमिटमेंट चाहिए जाहिर है, और हालात भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। अच्छा समीर साहब, मजमूई तौर पर भी सूरत हाल जानना चाहेंगे। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन और ये फिर जो इंटरेस्ट रेट है ये डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है, दूसरी जानिब हम जो सियासी सूरत हाल बनती देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम देखते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं तो देखा जाए कि डायरेक्टली वो इफेक्ट करती है माशियात को। तो आप क्या देख रहे हैं? अब आगे लॉन्ग मार्च भी अनाउंस हो चुका है, 25 तारीख दी जा चुकी है, तो सूरत हाल मजीद खराब नहीं हो जाएगी? देखिए ये बात तो ठीक है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो तो जरूरी है जाहिर है माशी स्टेबिलिटी के लिए, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जितना जल्दी ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ये खत्म हो जाए, इससे जो है मुल्क को ज्यादा ही फायदा है। अब इसके अंदर जाहिर है वो तो डिपेंड करता है हुकूमत इसको कैसे टैकल करती है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना जल्दी हम स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएं जहाँ पे हुकूमत जो है जो रैशनल डिसीजन है वो ले सके, तो उससे जो है जब भी आप इस पूरे मकसमे से निकल सकेंगे ना, वरना तो ये यहीं से पॉलिटिकल से या जो है इंस्टेबिलिटी से ये सारी चीजें अराइज हुई है। वरना तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह तो काफी हद तक बेहतर ही हो गया था, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम ही था, $600 मिलियन के लगभग डेफिसिट, तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारा। अप्रैल 2018 में हमारा डेफिसिट $2.2 अरब था, उसके मुकाबले में तो 1/4 है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी ज्यादा होगी उसकी वजह से चीजें खराब होती चली गई। अच्छा, ये बताइएगा कि मुस्तकबिल करीब में कुछ कमी की गुंजाइश नजर आ रही है आपको मौजूदा हालात में? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम स्टेबलाइजेशन पूरी ले लेना सारे मेजर्स को, सिर्फ नवंबर-दिसंबर से हमारी इफरात ज़र कुछ कम होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है फिर, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है फिर भी स्टेट बैंक जो है ना वो 3-4-6 महीने इंतजार करता है, जब उसको डेफिनेट ट्रेंड नजर आ जाता है ना, तो आप समझे अगर कोई कमी हुई भी ना तो हम मार्च अगले साल की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये कि 1 साल तक तो हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, उसके बाद जो हम सोच सकते हैं कि अगर सिचुएशन अच्छी बनती है तो फिर इसमें कुछ कमी लाई जा सकती है। अच्छा समीर साहब, ये भी बता दीजिएगा, सूरत हाल सब आपके सामने है, क्या लगता है जो मुज़ाकरात IMF से हो रहे हैं किस हद तक पॉजिटिव हो सकते हैं? मिफ्ता इस्माइल तो कह रहे थे कि बात हो सकती है, हम कोशिश करेंगे, आपको लगता है कोई बेटरमेंट आएगी, कोई पॉजिटिविटी नजर आएगी? हो सकती है, अच्छा, चूंकि दुनिया के हालात भी ऐसे हैं, हमारे भी कमिटमेंट्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात हो सकती है कि IMF जो है इस वक्त मान जाए ये बात और ये कहते हैं कि प्रायर एक्शन में आप जो है वो फ्यूल वगैरह की प्राइसेस बढ़ा दे, तो बोर्ड अप्रूवल में तो 1.5 महीना है, आप जब तक ये सारे काम कर ले, सब्सिडी वगैरह विड्रॉ कर लें, तो यहाँ पे पॉजिटिव नोट पे नेगोशिएशन हो जाए। बिल्कुल। समीउल्लाह तारिक साहब, इमरान सुल्तान हमारे बिजनेस एडिटर भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जी इमरान। नहीं, ये बताइएगा कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हुआ है हमारी हार्ड कोर इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर। खान साहब जाते जाते एक बड़ी माइंस बिछा के गए पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर सब्सिडी। क्या ये मुनासिब नहीं होता कि अगर सब्सिडी जो खान साहब जब गए थे जिस लेवल के ऊपर थी उसी के ऊपर रखती, क्योंकि अब एडिशनल प्राइसेस बाहर बढ़ेंगे और यहाँ पे वो बोझ जो है इस हुकूमत के ऊपर मजीद बढ़ता जा रहा है। तो ये और जाहिर है कि हुकूमत इतना बड़ा फैसला कर भी नहीं सकती, अगर करेगी तो पॉलिटिकल कैपिटल का उसका जो है वो नुकसान हो सकता है। तो ये इस वक्त एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम बहुत उसकी बात किया करते थे, लेकिन जरूरत क्या है, क्योंकि इन लेवल की सब्सिडी को आप बर्दाश्त
ही नहीं कर सकती, आपकी हुकूमत किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकती ये, और अगर करते हैं तो फिर हुकूमत का नुकसान है। क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतें हैं उसके ऊपर से हुकूमत का इख्तियार ही खत्म कर देते, ताकि ये कि उसका ब्लेम हुकूमत के ऊपर आए ही ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हम अगर बाजार से स्टेपलर खरीदते हैं या कोई भी ऐसी चीज खरीदते हैं जिसकी कीमत का हमें पता है हुकूमत का इसके लिए इख्तियार ही नहीं है, उसकी कीमत डबल की हो जाती है तो उसका जिम्मेदार हुकूमत को कोई नहीं ठहराता। इसी तरह पेट्रोलियम को भी हुकूमत के दायरा कार से निकालने की जरूरत है, डीरेगुलेशन की, ताकि इसकी जो कीमतों का तयन है हुकूमत के हाथ में हो ही ना, मार्केट फोर्सेस के हाथ में हो, जिससे जो है आइंदा ये सब्सिडी का प्रेशर हुकूमत के ऊपर हो ही ना। लेकिन उसका देखिए आप ये अगर आप ये तजवीज देंगे तो इस वक्त तो विदहोल्डिंग एजेंट बने हुए ना आपके, जो पेट्रोलियम के ऊपर कितना रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट जमा कर रही है। रेवेन्यू तो कोई रेवेन्यू, अब जैसे एक मिसाल इंडिया है, इंडिया आप देखें वो पूरे जितना भी ये टाइम पीरियड था इंडिया में वो कीमतें कंटिन्यू ऊपर की तरफ रिवाइज होती चली गई और हफ्ते 10 दिन में ही वो कीमतें बढ़ाते चले गए थे, एक हफ्ते में 2-2 दफा भी कीमत बढ़ा देते थे। वो कीमत बढ़ते बढ़ते उनकी कीमत इतनी ऊपर थी कि उनको इस पूरे उसमें कोई रेवेन्यू का लॉस नहीं हुआ और वो इसके अंदर स्टेबल ही रहे, बल्कि उन्होंने टैक्स भी कलेक्ट किया। तो हमें भी इसी तरह कुछ करना चाहिए था कि हमने उल्टा यहाँ पे अब फंसा दी। अब हम हुकूमत जो है 15% पे बोरो कर रही है और उससे वो सब्सिडी को फाइनेंस कर रही है, उससे वहाँ लिक्विडिटी भी टाइट हो रही है, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जा रहा है और इवेंचुअली ये पैसा भरना तो वापस पब्लिक नहीं है ना। यानी ये कि आप ये सोचें कि इंटरेस्ट के समेत ये अमाउंट जो है वो पब्लिक नहीं वापस करनी है। जाहिर है अगर हुकूमत के कर्जे में ये अमाउंट ऐड हो गई है तो जाहिर है इसका प्रेशर दोबारा इन्फ्लेशन की सूरत में और कर्जे की अदायगी की सूरत में अगले बजट में जाहिर है प्रेशर और ज्यादा होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि आइडियली इसको जो है वो इससे निकालने की जरूरत है। हुकूमत अपने टैक्स फिक्स कर ले, तो बाकी जो कीमत का पीछे से इंक्रीज आ रहा है वो पूरा पास ऑन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ सनतकार हजरात भी मौजूद हैं, उनसे भी राब्ते की कोशिश करें। इस वक्त हमारे साथ सनतकार मियां जाहिद साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा मियां साहब कि इस वक्त जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, इससे आपके मसाइल जो कि पहले ही निशानदही की जा चुकी है उसमें मजीद इजाफा होगा? डेफिनेटली जी, मसाइल में इजाफा होगा। मैं तो समझता हूँ ये इन्वेस्टमेंट पर और इंडस्ट्री पे और बिजनेस पे एक बम शेल की हैसियत रखता है, क्योंकि 1.5% का इजाफा बहुत ज्यादा इजाफा है। अब अगर उनको 14% टोटल मार्कअप हो गया, उसके ऊपर स्प्रेड लगा के कोई 18-19%, 19.5% ही बनेगा। तो इन अदर वर्ड इसका मतलब ये है कि मुल्क में इस वक्त आपकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी और तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो बेइंतहा महंगी हो जाएंगी और उसके नतीजे में फिर आप जाहिर है कि आपकी एक्सपोर्ट भी हर्ट होंगी, क्योंकि आप एक्सपोर्ट में भी आपको जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से डॉलर डे बाय डे महंगा हो रहा है, आज भी 80 पैसे डॉलर महंगा हुआ है, तो उससे आपकी रॉ मटेरियल सारा महंगा हो रहा है और उसके ऊपर अब ये जो कॉस्ट और इनकर हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन जो है मैं समझता हूँ ये बैड टू वर्स की तरफ जा रही है और हुकूमत को चाहिए ये था कि ये सारी चीजें जो है ना वो टारगेटेड अंदाज में मैनेज करे। अगर ओवरऑल इस तरीके से आप ये बमशेल गिराते हैं तो पूरी की पूरी इकॉनमी आपकी जो है ना वो तबाह होती है और बर्बाद होती है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट ए वाइज डिसीजन। ठीक, मियां जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया खुर्रम शहजाद साहब ने। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे 1.5% का इजाफा कर दिया गया है शरह सूद में, किस तरह से देख रहे हैं, क्या इफेक्ट करेगा ये मार्केट पे? देखिए जी, काफी ज्यादा जो है वो टफ डिसीजन है डेफिनेटली, और बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें एक चॉइस हमारे पास जो है ये एक है ऐसी, जिसकी वजह से एक टूल जिसे कहते हैं वो स्टेट बैंक यूज करता है और स्टेट बैंक ये सोचता है कि रुपी को सहारा दिया जा सकता है या फिर इम्पोर्ट्स को जो है वो कर्टेल किया जा सकता है, डिमांड को कम किया जा सकता है, ताकि जो है चीजें पहले स्टेबलाइज हो जाएं दोबारा। क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ डॉलर्स की जो सेविंग्स कह लें या डॉलर का जो फ्लो है वो बहुत कम है रिलेटिवली और हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो एक टूल ये यूज जरूर होता है, लेकिन ऑफकोर्स इसके नुकसान काफी हैं और इसका इम्पैक्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे नेगेटिव आता है और आएगा भी, और नेचुरली ये ग्रोथ को भी कम करेगा, इन्वेस्टमेंट को भी कम करेगा। और आप क्या अगर नहीं करेंगे तो एक आपके पास कॉल ये है कि अदरवाइज आप रुपये को फिर डेप्रिशिएट होने दें और उसके साथ फिर महंगाई जो होती है वो बढ़ती रहेगी, महंगाई कभी कम नहीं होगी और डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या कम करने से
महंगाई में जो है वो कमी या ज्यादा नहीं होती, वो आप रीजन है। लेकिन ये टूल जरूर है जो कि यूज करता है स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, ताकि जो है समहाउ चीजों को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा खुर्रम साहब, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और ज्यादातर माहिरीन, बल्कि तमाम माहिरीन का ही यही कहना है कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होता है। तो जानना ये चाहेंगे, स्टेट बैंक के पास क्या कोई ऑप्शन था, इसको रोका जा सकता था या पुरानी पे बरकरार रहा जा सकता था, तो क्या चांसेस थे? और अगर स्टेट बैंक ने ये डिसीजन लिया है तो अब इसके बाद क्या है? देखिए, मैं वही कहूँगा, स्टेट बैंक के पास तो लिमिटेड ऑप्शन होते हैं ये वाले कि इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करता है तो उससे जो सप्लाई होती है करेंसी की वो कम ज्यादा होती है, लेकिन ओवर द पीरियड होती है। और देखें, इस वक्त आप ध्यान में एक चीज रखिए कि IMF प्रोग्राम हमें वापस चाहिए अगर, तो IMF आपको यही कहता है कि इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा के रखें, टैक्सेस बढ़ा के रखें, प्राइसेस को बढ़ा के रखें आप, और रुपये को जो है अपनी करेंसी को आप मार्केट बेस करें। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट भी है। जब आप सब्सिडीज जो है वो पास ऑन नहीं करेंगे और टारगेटेड सब्सिडीज भी नहीं करेंगे तो आपको ये सारे कॉस्ट जो है वो झेलनी पड़ेगी, और ये सबको फिर इम्पैक्ट करती है, खासकर बिजनेस इंडस्ट्री को, ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है। लेकिन आपके रिफॉर्म्स ही नहीं हुए, आपके एनर्जी के रिफॉर्म्स नहीं हुए, आपका फिस्कल रिफॉर्म्स नहीं हुए, ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स हमने रिफॉर्म्स नहीं किए जो हमें करने चाहिए। तो ये उसका सारा उसका इफेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि जी कल ही सारे मसले हुए हैं और इसलिए स्टेट बैंक ने एकदम से डिसीजन लिया। स्टेट बैंक का काम है डिसीजन लेना। हमारा ये होना चाहिए काम, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये देखना चाहिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि फिस्कल पोजीशन को कैसे बेहतर करें। क्योंकि फिस्कल पोजीशन जब आपकी ठीक नहीं होगी, आपको कर्जे लेने पड़ेंगे और सब्सिडियों में आप जाया कर देंगे, और वो भी खासकर टारगेट सब्सिडी नहीं होगी, तो फिर इस तरह के डिसीजन आएंगे जिससे जो है ना बिजनेस इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा, इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, लेकिन दूसरे एंड पे आपको IMF प्रोग्राम में भी जाना है। तो ये एक बैलेंस है, आपको एक चॉइस आपके पास नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ना डिरेल हो जाएगी इकोनॉमी और आपका डॉलर का फ्लो बहुत ज्यादा आउटफ्लो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तजियाकार मुजम्मिल असलम साहब ने। मुजम्मिल असलम साहब, 1.5% बढ़ा दी गई मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के लिए ये एक मुश्किल वक्त है और उससे ज्यादा सनतकारों और ताजिर हजरात के लिए? देखिए, मौजूदा हुकूमत के लिए क्या मुश्किल वक्त है, वो तो आए हैं चंद हफ्तों के लिए और वो जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, फैसले कर नहीं पा रहे। मुश्किल हालात पाकिस्तान को मजीद मुश्किल हालात में डाल दिए। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हुए इनकी जान जारी है। इमरान खान ने 1 जून 2021 से लेकर 15 फरवरी तक 54 रुपए पेट्रोल की मुसलसल कीमत बढ़ाई थी। तो सब फैसले अगर चले 30 रुपए नहीं 10 रुपए बढ़ाते, मार्केट को सिग्नल दें और चीजें जो है जरूरी हैं वो करें। नाजायज चीजें जो है 6 दिन कर दिए, छुट्टी के बढ़ा दी, जैसे पूरी मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ गई, दरामदाद पे पाबंदी लगा दी, उल्टी सीधी जल्दबाजी में $100 मिलियन की भी महीने की बचत नहीं है। तो इस तरह के फैसले, और फिर LNG जो है ताकत नहीं जो है। मुजम्मिल साहब, बुनियादी तौर पर मईशत पर इससे क्या असरात होंगे, कुछ इस पर इजहार ख्याल कीजिएगा। 1400 अरब रुपए सिर्फ पिछले साल प्राइवेट सेक्टर ने कर्ज लिया था और जब उस वक्त 8-9% था। अब ये 14% यानी कि 2% और मिला लें 16%। तो निहायत ही जिसे कहते हैं मुश्किल वक्त कारोबारियों के लिए आ जाएगा मईशत। लेकिन मुजम्मिल साहब, दूसरी जानिब से मुसलसल यही कहा जा रहा है कि जो मुआहिदा IMF में जाके आप कर आए थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये तमाम उन्हीं को पूरा किया जा रहा है, शराइत उन्हीं की है, तो फिर कौन दुरुस्त है? देखिए, मेरी बात सुने, मुआहिदा हमने 1 साल से सिर्फ सेल्स टैक्स रखे भी टैक्स हद से ज्यादा टैक्स जमा कर लिया, ठीक है ना। मुआहिदा तो इन्होंने, अगर मुआहिदा हमने किया था तो मिर्जा इस्माइल जब मई 2018 को वजीर खजाना थे तो उस वक्त 17% सेल्स टैक्स लेते थे। ये क्यों बोल रहे हैं कि मुआहिदा हमने किया था? उस वक्त भी तो ये लेते थे। पेट्रोलियम में भी ये 30 रुपए लीटर लेते थे। तो बात ये है कि हमने मैनेज किया था, अगर एक तरफ टैक्स रिलीफ दिया था तो दूसरी तरफ टैक्स टारगेट भी पूरा किया था। और जैसे मैंने आपको बताया 54 रुपए लीटर 6 महीने में हमने कीमत बढ़ाई थी पेट्रोल की, वो सब फैसला नहीं था। तो इनसे क्यों नहीं लिया जा रहा? इनके आगे सिर्फ इलेक्शन नाच रहे हैं, इलेक्शन के अलावा इनको तो दूसरी चीज ही नजर नहीं आ रही। ठीक, इमरान सुल्तान, आपसे जानना चाहेंगे, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं 2021 में जो मुआहिदा हुआ, उसके बाद फिर ये जो अब अभी तक इन कंडीशंस को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई नई हुकूमत कहीं ना कहीं लैप कर रही है? देखिए, मुजम्मिल जो बात कर रहे थे मैं उसको सेकंड करूंगा, और मैं बात सारी यहीं पे आके रुकती है कि हमने हार्ड कोर हमारे जो इकोनॉमिकल डिसीजन थे पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हुआ। अब एक जानिब तो मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि आप पेट्रोलियम प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ा रहे,
दूसरी जानिब इससे पहले भी एक दफा मैंने कहा था कि इस बात की क्या गारंटी आप देते हैं कि आज पेट्रोलियम प्राइसेस की हुकूमत बढ़ाती है तो कल आप ही जलसों में खड़े होकर हुकूमत को लानतान नहीं कर रहे होंगे, या खान साहब जो है वो इसको नेगेटिव चीज नहीं कह रहे होंगे। ये हुकूमत मैंडेट के साथ नहीं है इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए, और यही चीज इस वक्त हम जो पॉलिटिकल एक डिस्टर्बेंस देख रहे हैं वो सारी यही है कि मैंडेट इसके पास नहीं है और इतने बड़े डिसीजन लेने का, या तो फिर सारे इत्तेहादी जमातें भी साथ में हो और फिर जो दूसरे लोग हैं वो भी इतने साथ में हो ताकि ये बड़े डिसीजन लिए जाए। तो मैं अगेन ये कहता हूँ कि पॉलिटिकली इसको यहाँ पे डील किया जा रहा है। सही। मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे, पॉलिटिकली इसको डील किया जा रहा है, आपकी जमात थी, आप फैसले ले रहे थे, लेकिन अगर आज ये हुकूमत जो हम देख रहे हैं कि 9 जमातों का मजमुआ है ऐसा फैसला लेते हैं तो क्या आप उस पर तनकीद नहीं करेंगे? देखिए बात ये कि तनकीद तो हमारा हक है ना। इन्होंने जब हमने 14 दफा पिछले 6 महीने में कीमत बढ़ाई तो इन्होंने क्या किया कि हमारी तारीफ करते थे। अगर ये उस पर सीधे चल जाते तो ये आज मुल्क के हालात में नहीं आता। दूसरी बात ये कि जब हम बढ़ा रहे थे तो हमने दूसरी तरफ रिलीफ कट किया था। रिलीफ 120 अरब के साथ राशन दिया, कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान, अलग अलग स्कीम, बिजनेसेस को हमने इंसेंटिव दिए। ये तो ना रिलीफ देने की पोजीशन में है ना फैसला लेने की पोजीशन में है। बात ये कि अगर ये फैसला लेते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, अगर उसके साथ कोई इन्होंने रिलीफ नहीं देंगे तो हम तो इनको क्रिटिसाइज करेंगे। क्योंकि ये बैलेंस करना, बैलेंसिंग एक्ट इकोनॉमी में, पॉलिसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। हमने देखे, हमने जो है जब कोरोना आया था तो 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया था, उस वक्त मैं टैक्स था मैं कुछ था, उसके सम्राट हमने देखे लॉन्ग टर्म में अचीव किए। तो ये चीजें इनके अंदर मिसिंग है। ये सिर्फ जो है पॉलिटिक्स करते हैं, रोज सुबह आके उल्टा सीधा बोलते हैं। पिछले दिनों कह रहे थे 4% की रफ्तार से मेशे चल रही है, आगे 6%। ठीक, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद ने भी हमें ज्वाइन किया, मियां जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान सुल्तान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमसे बात कर रहे हैं। इन तमाम लोगों से फिर बात करें।